a technical announcement that may I request all of you to switch off your mic to have a greater clarity of our voice and picture. So I'll request everybody to switch off, keep their mic on mute format until unless you are required to speak. So I'm taking this opportunity to welcome you all in this meeting. As you know that the Gandhian Center for Peace Studies in Indira Gandhi National Open University is celebrating 150 years of the Mahatma. As a part of this celebration, the center has already launched several online programs like MA program in Gandhian Peace Studies, PG Diploma in Gandhian Peace Studies, PG Certificate in Gandhian Peace Studies. We have also organized series of talks. One of the talk was organized only in the last month, and that was on Gandhian ideal and praxis. On 2nd October, we will be organizing a series of programs starting from Shraddhanjali to Mahatma at 10:15 a.m. in the Maidangari campus. It will be followed by online competition, painting competition by the children of IGNOU staff member that will be online. It will be followed by essay competition by IGNOU staff members and the registered student. I'm happy to announce that we have received more than 450 entries in the poetry from the students from all over the country. And similarly, we have got good number of entries for the painting competition. I request all of you to join all this program online. Now, today we have a significant national webinar on Gandhian perspective that will be addressed and delivered by none other than a prominent nationalist philosopher, a poet, and an administrator, Professor Arun Devakar Nath Bajpayee. Now, I'll request Professor Rashmi Sinha, the directors of the School of Social Sciences, to welcome our guest speakers and other participants. Rashmi Sinha ji. Professor Rashmi Sinha. Professor Rashmi Sinha, are you available? Are you getting our voice? I don't know why it's getting muted. I'll start it again. Let's see. Okay, please. Yeah. Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Nageshwar Rao, our distinguished speaker, Professor Arun Devakar Nath Bajpayee, nationalist thinker, poet, and former Vice Chancellor, H.P. Shimla, our ever-encouraging pro-Vice Chancellor, and August gathering, Sadar Abhinandan. Indira Gandhi National Open University celebrates 150 years of Mahatma Gandhi. School of Social Sciences extends hearty welcome to all who have joined us in the national webinar on Gandhian perspective. Mahatma Gandhi is extensively acknowledged as one of the most powerful political thinker and activist of 20th century. Gandhiji aims at what we may call sustainable development, balanced development of body, mind, and soul. He realized that human development is not just material or economic, but it has to be moral, it ought to be capable to inculcate the values of equality, liberty, and dignity in people. Also, it must provide the persons with courage to protest against injustice. His emphasis on decentralization, community-based economics, self-sufficiency, handicrafts, rural development, and use of low capital-intensive appropriate technology reflects his visualization for a self-sufficient economy. Gandhiji, regarded as an unparalleled social activist, always put in effort for the upliftment of weaker section of our society. According to him, India is a country of villages and its countrymen are economically as well as socially poor. Hence, the reason for him to advocate Swaraj for self-development, but then he believed Swaraj self-governing should come with
the responsibility, and for economic growth, trusteeship. That was in his best opinion. Gandhiji strongly advocated Swaraj and trusteeship, a must for well-being of every individual. These days, we are actually talking about the new education policy. However, decades ago, Gandhiji did talk about Nai Talim. His concept of education holds significance in the contemporary situation. Gandhiji's philosophical concept of education is completely based on the development of human personality to maintain the discipline, to create manual work with learning, and to develop the culture of the peace. He was great educationist and an individual par excellence. Gandhiji was of the thinking that education is the most important means in the society which can be used for socio-economic progress, material advancement, political evolution, and moral development of an individual. His entire philosophy and work was based on ethics and morality. It may be said that his concept of education has full of religious ideas, and his idea of religion is different from the concept. He believed in the service of humanity. He propounded Nai Talim or basic education. Acharya Kripalani said that this education system is the ongoing this education system is scoping stone of Gandhiji's social and political edifice. His philosophical thought on education is highly pedestal that creates the socio-economic development of society. Today, we find the relevance of Gandhian perspective. In fact, when we look at the conditions of the farmers, the laborers, women, and minorities, we notice while rays of modernity, elements of basic humanity are left far behind. It's a hope that Gandhiji's thoughts will help us to save the extensive humanity. We are rather faced with very challenging situation arising out of COVID-19, where power, money, dominance, and all related things have been challenged. Only humanity is existing. I am sure his perspective would surely sail us through this, and yes, we must believe in the universal perspective of humanity. We hope that this webinar on Gandhian perspective by a learned and illustrious speaker, Professor Arun Divakar Nath Bajpayeeji, would enrich and enlighten us on varied aspects. Thank you. Thank you, Rashmiji. Thank you very much. Our esteemed Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, all our respective Vice Chancellors, the directors of the schools and heads of divisions, my fellow teachers, colleagues, and the academics, and my dear students. Sir, I'm happy to inform you that we got a good number of our student participants. Many of them are participating from Jammu and Kashmir, somebody from Gujarat, and also we are having students even from Tamil Nadu and some students also from Northeast. They are participating in this webinar. Sir, with all of your permission, I have the pleasure and privilege to introduce our speaker today, Professor Arun Divakar Nath Bajpayeeji. All of us, we know that Professor Bajpayeeji has been an able academic administrator and educational leader in the country. He has been a Vice Chancellor for Himachal Pradesh University, Vice Chancellor Adarsh Pratap Singh University, Rewa, Vice Chancellor Mahatma Gandhi Chitrakoot, Ramannaya Vishwavidyalaya Chitrakoot. He has also been council member of Association of Commonwealth University London and varieties of honorary positions and administrative positions he has held and given leadership for this country and abroad. For his academic excellence and administrative excellence, he has received a host of awards. I can only mention a limited few. Those are only very recent ones. Vivekanand Seva Alankaran 2019 by Bharat Vikas Parishad Jabalpur, Guru Vaishishta Samman 2018. Then Rani Durgavati University felicitated him with Rajshekhar Samman, Vishwa Hindu Seva Samman, Amity Academic Excellent Award by Amity Group of Educationists, Radha Kishan International Award. These are varieties of the awards, and he has also been declared as the Ambassador of Peace Award by Universal Peace Foundation. Similarly, he has also been awarded Bharat Gaurav Sarshat Samman, Sahitya Samman, varieties of the award he has achieved. Professor Bajpayeeji has written extensively on varieties of the social issues. He has
worked on the issue of self-employment, self-financing courses in Indian universities, women's empowerment, post-reform leading issues, and he has also written 2 books on economic thoughts of Mahatma and economic approaches of Mahatma Gandhi, and edited one, Dimensions of Rural Development in India, Emerging Trend in Indian Economy, Evaluation of Land Reforms, and Infrastructure for Agricultural Growth. Very recently, one of the publications of Arunji has attracted the attention of literary critics and also a host of literary followers. Is Arun Satshai, that a composition of the poetry that has attracted the imagination of young generation of poets, the nationalists, and philosophers. I'm taking this opportunity on behalf of all of you to welcome Arun Divakarji to this program, and I'll request him to deliver his talk. Arun Divakarji, please. परम श्रद्धेय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अत्यंत सम्माननीय कुलपति और हमारे सुदीर्घ काल से अत्यंत प्रिय आत्यंतिक मित्र भी, भाई भी, और जिस प्रदेश में मैं हूं उसके वरिष्ठतम आचार्य होने का सौभाग्य भी प्रोफेसर नागेश्वर राव को मिलता है। हम सभी लोग शायद जब रीडर ही रहे होंगे तब ये प्रोफेसर नागेश्वर राव प्रोफेसर हो चुके थे। ये इनका स्नेह और हमारे प्रति श्रद्धा है, कितना सम्मान देते हैं। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज गांधी जी के साथ में कुछ सहभागी होने का सौभाग्य उन्होंने दिलाया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर देबल सिंह जी रॉय जी, प्रोफेसर रश्मि सिन्हा जी जो कि अच्छी बात अभी कर रही थी, प्रोफेसर आर.पी. दास साहब, वो भी हमारे बहुत ही निकटतम मित्रों में से हैं, रायपुर से लंबी यात्रा करते हुए भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। और भी प्रो वाइस चांसलर्स होंगे जो मुझे पता नहीं कौन कौन लोग हैं। हमारे कुछ विद्यार्थी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मथुरेश जायसवाल जी हैं, बारेलाल जैन जी हैं रीवा से, कल्पना शास्त्री जी दुबई से जुड़ी हुई हैं, विवेक त्रिपाठी जी जो लखनऊ में हैं। हमारे मित्र हैं अफशार आलम साहब जो कि जामिया हमदर्द में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे अनुरोध जुड़े हैं। हमारे वरिष्ठ हैं प्रोफेसर ओ.पी. मोंगा जी जो कि हिमाचल प्रदेश में सोशियोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। रविंद्र राठौर भी हिमाचल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन सबको मैं नमस्कार करता हूं। और जो रीजनल सेंटर है नोएडा का, उसके डायरेक्टर अमित चतुर्वेदी जी को मैं देख रहा हूं, इनसे बहुत पुराना परिचय लखनऊ से। और भी बहुत सारे रीजनल डायरेक्टर्स जुड़े होंगे, जबलपुर के भी मिस्टर श्रीनिवास या दरभंगा के एस.एस. सिंह, ये सब लोग जुड़े होंगे। उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैडम डॉक्टर आशा रानी जबलपुर से, वो भी कह रही मैं भी हूँ। एक अतुल दुबे जी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आपने मुझे सूचना दी थी मैंने प्रसारित कर दी थी, जिससे सब लोग हमारे साथ में जुड़ जाएं और एक दूसरे से लाभ लेने की कोशिश करें। गांधी की जब बात करते हैं तो गांधी पर बात करना कोई आसान काम नहीं है। गांधी पर जैसे ही बात करते हैं तो बात करने वाला अपना आत्मावलोकन शुरू कर देता है। बात तो हम गांधी की कर रहे हैं, जीवन में आचरण किस प्रकार का है। 5-10% भी उसकी सत्यता है, 5-10% पे उसकी ईमानदारी है, 5-10% भी समझौता न करने की प्रवृत्ति है, 5-10% भी न्याय करने की प्रवृत्ति है, 5-10% भी एक ऐसी बात कहने की जो सत्य पर आधारित हो, सामने को कष्ट देने वाली हो। तो महज अकादमिक बात करने से हट करके जब तक गांधी को हमने जिया नहीं है, कुछ अंश तक जिया नहीं है, मुझे लगता है बात प्रभावी नहीं होती। मैंने जब परिचय कराया देबल सिंह ने, पता नहीं वो बात छोड़ क्यों दी,
और मुझे तो लगा उसी कारण ही मैं आपके बीच में हूँ। जो केंद्र शासन गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है, उसका सदस्य भी मुझे बनाया गया है। लगभग 2 साल से मैं सदस्य हूँ उसका। शायद 2 अक्टूबर 2020 को संपन्न हो जाएगी। 2 बैठकें हुई हैं और जब पहली बार चिट्ठी आई माननीय प्रधानमंत्री जी की कि अपने अपने आप सुझाव दीजिए कि गांधी पर क्या होना चाहिए, तो मैंने लिख करके भेजा कि गांधी पर लिखा बहुत जा चुका है, गांधी को पढ़ा बहुत जा चुका है, गांधी को छापा बहुत जा चुका है। गांधी पर एक सुभाष लेथर जी भी जुड़े हैं, जो कि हमारे गांधी की 150वीं जयंती के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी साथ में जुड़े हुए हमारे साथ में। गांधी पर मार्ग बहुत बने हुए हैं। गांधी पर स्कूल से लेकर के महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय बहुत बने हुए हैं। ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन गांधी को हम क्रिया में नहीं ला पाए। तो मैंने हस्तलिखित चिट्ठी लिखी थी हमने, गांधी इन एक्शन should be the focal theme of this entire 150th celebration of Gandhi। मुझे पता नहीं और भी लोगों ने कहा होगा, ऐसा नहीं कि हमने कहा हमारी बात मान ली गई हो। लेकिन जब पहली बैठक हुई राष्ट्रपति भवन में तो पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा कि इसी पूरी जो थीम है इसको गांधी इन एक्शन रखेंगे और इसको गांधी के प्रति कार्यांजलि, ये उन्होंने नाम दिया। मैंने गांधी क्रिया में लिखा था, गांधी कार्यांजलि मान लिया। तो गांधी जो है, गांधी का स्वयं एक प्रयोगात्मक जीवन है। तो गांधी को जब तक हम व्यवहार में नहीं उतार पाएंगे तब तक बात नहीं बन पाएगी। लेकिन मुझे लगता है गांधी का जो पीरियड है, उस समय पीरियड में आज देख रहा था कि उस समय पीरियड में कौन कौन लोग जन्मे। अरबिंदो घोष लगभग 3 साल बाद, विवेकानंद लगभग 6 साल पहले, मालवीय जी 8 साल पहले, गोखले 3 साल पहले, लगभग 13 साल पहले तिलक। मतलब 10-15 साल के अंदर अंदर आप पाएंगे अरबिंदो को, विवेकानंद, महामना मदन मोहन मालवीय, गोखले, तिलक और गांधी। वो जो पीरियड था 15 वर्ष का, ऐसा लगता था कि खगोलीय क्षेत्र में कुछ ऐसा नक्षत्रीय संगठन हो रहा हो कि सबके सबको इकट्ठा। लेकिन लेते पोरबंदर भारत वर्ष में उनकी व्याप्ति लेकिन सार्वभौमिक है। उन्हें कोई भी नहीं कह सकता है कि वो उस देश के नहीं हैं। यद्यपि उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 होती है, लेकिन वैसे काल जयी हैं, उन्हें काल कबलित कर ही नहीं पाया। वो अभी भी वैसे ही जीवंत है हमारे पास में जैसे कि अपने कार्यकाल में थे। और मुझे तो लगता है कि वो और अधिक वेग के साथ में हमारे पास में जीवित है। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती हैं, अशांति की हो चाहे युद्ध की हो, दोनों प्रकार के, वैसे वैसे गांधी हमेशा हमारे सामने प्रकट होकर के आ जाते हैं। गांधी एक मानव नहीं, महामानव है। गांधी एक व्यक्ति नहीं, गांधी एक संस्था नहीं, गांधी एक सजीव व्यवहार भी नहीं है, गांधी एक संस्कार है। गांधी हमारा डीएनए है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष के जो संस्कार हैं वो इनके अंदर जीवित रहते हैं। गांधी इतने प्रबल हैं, जितने गांधीवादी हैं वो तो गांधी की जय जयकार करते ही हैं, लेकिन गांधी के विरोधी भी, कट्टर विरोधी भी, नंबर 1 गांधी का विरोध खुल करके नहीं कर पाते, अपितु गांधी के जो साम्राज्य है, गांधी का जो कलेवर है, उसमें सम्मिलित होकर के उनके पक्षधर होते चले आते हैं। गांधी बहुत कुछ है, रश्मि जी बता रही थी, गांधी जी पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। मैंने कभी पॉलिटिकल शब्द का उपयोग उनके लिए अधिकांशतः नहीं करता हूं। गांधी में बहुत कुछ है। गांधी साहित्यकार हैं, गांधी का राष्ट्र भक्त हैं, गांधी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, गांधी पत्रकार हैं, गांधी राजपुरुष हैं, गांधी भक्त हैं, गांधी पर्यावरणविद हैं,
गांधी अर्थशास्त्री हैं, गांधी समाजशास्त्री हैं, गांधी कूटनीतिक हैं, सब कुछ गांधी, इनको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो कुछ गांधी नहीं है वो भी उन पर आरोपित कर दिया जाता है, वो भी उन पर चिपक के रह जाता है। उदाहरण के तौर पर गांधी महात्मा नहीं है, गांधी संत नहीं है, लेकिन उनको महात्मा मानने वालों की भी कमी नहीं है। गांधी अवतार नहीं है, गांधी को अवतार माना जाता है। गांधी भगवान नहीं है, भगवान माना जाता है। गांधी संत नहीं है, संत माना जाता है। तो गांधी को भगवान, संत, महात्मा मानने वालों की कमी नहीं है। ये गांधी की महानता है। गांधी को जितना पढ़िए, जितना समझिए, उसे कई रूप सामने आते हैं। जैसा मैंने बताया, गांधी आध्यात्मिक है, गांधी दार्शनिक है, गांधी मूल्य आधारित जीवन जीने वाले, सांस्कृतिक, सामाजिक, कूटनीतिक, आर्थिक, विकासवादी, प्रगतिशील, अकादमिक, नवोन्मेषी, नवाचारी, अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक सोच संपन्न, निरंतर प्रवासी, सत्याग्रही, प्रयोगधर्मी, साहसी लेखक, पत्रकार, प्रबंधक, पर्यावरणविद, वक्ता, संगठक। जितना उनके बारे में समझा, ये सारे स्वरूप और एक एक पर मैं घंटों घंटों बोल सकता हूं। ये सारे उनके आयाम सामने आते हैं। गांधी से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर सादा जीवन, उच्च विचार, गांधी का गांव, गांधी का चरखा, गांधी के 3 बंदर, गांधी की गाय, गांधी की बकरी, गांधी का हरिजन, गांधी का स्वदेशी, गांधी का हिंद स्वराज, गांधी का साबरमती, गांधी के अन्य आश्रम, गांधी का तलस्मा, गांधी की खादी, गांधी टोपी, गांधी का सर्वधर्म संभाव, गांधी का शारीरिक श्रम, गांधी की स्वच्छता, गांधी की अहिंसा, ये सारे मूल्य जो है वो गांधी के साथ में जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं कुछ संक्षेप में गांधी के परिदृश्य की बात करना चाहूंगा। गांधी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम गांधी के देश में हम लोगों ने जन्म लिया है। गांधी का जो पोरबंदर है, आपको शायद पता ही होगा, काठियावाड़ में है पोरबंदर। पोरबंदर में गांधी के पैदा होने से पोरबंदर गांधी के साथ में इतना समझिए कि समाविष्ट हो गया कि पोरबंदर में सुदामा का भी जन्म हुआ, ये पता नहीं चलता। गांधी की महानता देखिए, गांधी ने द्वापर के सुदामा की और कृष्ण की मैत्री के बारे में जो पढ़ते हैं, सुदामा का भी जन्म जो है पोरबंदर में होता है। लेकिन सुदामा को लोग भूल गए। लेकिन आप पाएंगे सुदामा के व्यक्तित्व, चरित्र में और उनकी जो काठी है और गांधी काठी में भी बहुत कुछ समानता दिखाई पड़ती है। ये बात दूसरे संबंध में है। गांधी एक ऐसा व्यक्ति, टाइम मैगजीन 1930 में उसे पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। 2 अक्टूबर 2007 को यूनाइटेड नेशंस ने नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाने की बातचीत की गई। 5 बार नोबेल प्राइज के लिए उनका नॉमिनेशन हुआ, नहीं मिला। बात दूसरी है, नोबेल प्राइज से कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं गांधी। उन्हें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। पूरा विश्व उनके जन्म दिवस को मनाता है। ये उनका मनाना ही सबसे बड़े पुरस्कारों से बड़ी बात है। पुरस्कार गांधी को छू नहीं सकते हैं। गांधी की बात बिल्कुल अलग है। मैं प्राय एक चीज और कहता हूं कि गांधी का जन्म यद्यपि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, लेकिन उनका सही मायने में जन्म कब हुआ इसकी चिंता करनी चाहिए। वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी घटना होती है, ऐसा दिवस होता है जो कि उनके वास्तविक रूप से उनका स्वयं का परिचय कराता है और जो वास्तव में उसका जन्म दिन हमको मनाना चाहिए। मैंने इस बात को कहा भी था जब पहली बार बैठक हुई थी। मैंने कहा था कि गांधी जी का वास्तविक जन्म जो है वो
7 जून 1893 को हुआ। वो समय, वो दिन, जबकि डरबन से सेंट जोनासबर्ग जा रहे थे गांधी जी, और रास्ते में पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको अपने टीटी से विवाद होने के कारण बड़ी ठंडक की रात में उनको फेंक दिया गया था। वहां से न केवल गांधी के अंदर सत्याग्रह के बीज जन्मे, बल्कि विश्व सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो उस समय उत्पन्न हुआ। वो गांधी का सही मायने में जन्म था। मैंने निवेदन किया था उसमें कि 7 जून 1893 मनाना चाहिए। मुझे बाद में पता चला कि तत्कालीन जो हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, ठीक 7 जून 1893 को उसी स्टेशन पे जाकर के गांधी जी की जहाँ प्रतिमा लगी हुई है वहां उन्होंने समारोह किया था। मैं भी उन सौभाग्य दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ। मुझे उस स्टेशन पे कुछ क्षण रुक करके गांधी की मूर्ति के सामने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। जब मैं इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका समिट में डरबन गया था एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं जानबूझ करके उस स्थल को देखना चाह रहा था। गांधी का जो पूरा का पूरा परिदृश्य है, परिप्रेक्ष्य है, हमें उस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। गांधी से जब पूछा कि आप का क्या संदेश है, आप क्या शिक्षा देना चाहते हो, तो उनका कोटेबल कोट है, माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये या तो गांधी के साथ में उद्धृत किया जाता है, या जब रामधारी सिंह दिनकर ने साकेत लिखा और साकेत में जब भगवान राम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। दो ही उदाहरण मुझे मिलते हैं। या तो गांधी इतने साहसपूर्ण ढंग से कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, या फिर साकेत में मैत्री शरण गुप्त कहते हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य, तुम जैसा आचरण करते हो वो स्वयं ही काव्य बन जाता है, और तुम्हें देख करके कोई भी कवि बन जाए ये सहज रूप से सुलभ हो जाता है। तो उन्होंने जीवन को जैसा जिया उसके साथ प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद में ही उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, इसीलिए बहुत प्रभावी होते हैं। गांधी का पूरा पूरा परिप्रेक्ष्य जो है वो भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत है। गांधी का परिप्रेक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक प्रयोगवादी या प्रयोगवादी आध्यात्मिक का है। वैसे आध्यात्मिकता से तात्पर्य होता है, रश्मि जब धर्म की बात कह रही थी तो उनको लगता होगा धर्म को प्रयोग से थोड़ा सा अलग करके बात है। हमारे यहाँ धर्म बिना प्रयोग के धर्म नहीं मानते। उससे बड़ा जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट वो आध्यात्मिकता का है। उससे तात्पर्य होता है हम जो जीवन के मूल्यों को जीवन जिए, और वही जीने का ही नाम जो आध्यात्मिकता होता है। तो गांधी जो है वो या तो प्रयोगात्मक आध्यात्मिक है या आध्यात्मिक प्रयोगवादी हैं, दोनों ही एक साथ अवधारणाएं उनके साथ में चलती रहती हैं। गांधी ने जो भारतवर्ष की जो आध्यात्मिकता है उससे ओतप्रोत होकर के, और उसके जो जीवन मूल्य थे उन जीवन मूल्यों को वैज्ञानिक ढंग से उनकी चिकित्सा करके, जो आवश्यकता है उसको अपना करके, जो अनावश्यकता था उसको हटा करके, जीवन में उतार करके, जिसको कहते हैं सिद्धांत जो अंततः सिद्ध होता है, उन सिद्धांतों का पालन करके, और पालन करने में व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, उनकी आध्यात्मिकता, उनका धर्म, उनका जीवन, उनका परिप्रेक्ष्य केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए ही नहीं है, बल्कि जिस परिवार में रह रहे हैं वो बाघ के लिए भी उतना ही लागू होता है, कस्तूरबा पर ही उतना ही लागू होता है, वो उनके साबरमती आश्रम में रहने वाले परिचरों पर उतना लागू होता है, वो वर्धा पर भी उतना ही लागू होता है, वो उनके समाज पर उतना ही लागू होता है, वो राष्ट्र पर भी उतना लागू होता है। चर्चिल से मिलने जाते हैं, चर्चिल पर ही उतना लागू होता है, माउंट बेटन पर भी उतना ही लागू होता है, उतना ही जिन्ना पर लागू होता है, उतना ही नेहरू पर लागू होता है। तो गांधी का जो परिप्रेक्ष्य है वो व्यक्ति से उठ करके पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को, पूरी जो मानवता है
उससे जोड़ने वाली उसकी आध्यात्मिकता, उसका परिप्रेक्ष्य, एकांगी होकर के काम नहीं करते। गांधी इस आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जैसा मन में है, वैसा ही वाणी में है, वैसा ही व्यवहार में है, तीनों में एकात्मता लाने का प्रयास करते हैं। प्रयास ही नहीं कि उन्होंने सिद्ध किया, सिद्ध करके बताया कि जो यदि मन में है वही वाणी में होगा, वही कर्म में होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने संभवतः 1915 में उनको एक टाइटल दिया था, महात्मा का टाइटल दिया था। जब उनसे पूछा गया कि आपने इन महात्मा क्यों कह दिया, तो उन्होंने कहा, मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्येकम महात्मनाम। जिसके मन वाणी कर्म में एक है वो महात्मा है। मनस्यन्नत कर्मण्यनत वचनसत दुरात्मना। मन वाणी और कर्म में जिसके अलगाव है वो दुरात्मा है। वो एक महात्मा वही होता है जिसके मन वाणी और कर्म में एकात्मक है। सत्य के लिए समर्थित, सत्य के लिए संपन्न, सबसे अधिक सत्यवादी इस धरती पर हरिश्चंद्र को छोड़ दीजिए, आप उनकी बात नहीं करते हैं। आधुनिक युग में तो दो लोगों के नाम सबसे लिए जाते हैं, एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और दूसरे महात्मा गांधी। बर्नार्ड शॉ तो कुछ सीमा का और अतिक्रमण कर जाते हैं जब सत्य की बात आती है। मैं यहाँ पर उनका जिक्र नहीं करूंगा। गांधी की बात करना है, सत्य ही उनके लिए ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। जब एक विदेशी ने कहा कि सत्य को भारत में विदेश से, यूरोप से सताया, तो गांधी ने कहा नहीं, भारतवर्ष की जो समृद्ध परंपरा है वो बहुत पुरानी है। सत्य पर ही आधारित हमने जीवन जिया है और सत्य को ही जो हमने ईश्वर माना है, इससे हमें किसी से सत्य सीखने की आवश्यकता नहीं हो, कोई हमको शिक्षा भी न दे। गांधी के जो औजार हैं वो भी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से ही उपजे हुए हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत भारतवर्ष से जाए, लेकिन किस तरह से जाए? या तो शस्त्र क्रांति हो सकती थी या अहिंसावादी तरीके से भाव बन सकता था। और हिंसक क्रांति का भी, हिंसक युद्धों का भी भारतवर्ष में अपना एक उदाहरण रहा है, एक अच्छा इतिहास रहा है। और मुझे लगता है विश्व युद्ध 1914-1944 में तो बाद में हुए हैं। भारतवर्ष ने त्रेता में रावण के साथ में युद्ध हुआ, वो भी एक विश्व युद्ध था। और द्वापर में महाभारत का जो युद्ध वो भी एक विश्व युद्ध था। और उस विश्व युद्ध के अंतर्गत जैसे शस्त्र अस्त्रों का उपयोग किया गया, महाभारत में तो सारा उल्लेख भी मिलता है, वैसा तो अभी भी अस्त्र शस्त्र बन ही नहीं पाए। ब्रह्मास्त्र की बात जब करते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ करके पुनः अपने पास में वापस आ जाए, ऐसा ब्रह्मास्त्र बना नहीं सकते। ब्रह्मास्त्र में वो डिस्क्रिमिनेशन भी है, फीड कर देते थे, इसको मारना है, इसको नहीं मारना है, इस स्तर तक मारना है। वैसा ब्रह्मास्त्र तो अभी बन ही नहीं पाया। युद्ध की हमारे पास में एक पूर्व पीठिका है, लेकिन गांधी उसका उपयोग नहीं करते हैं। गांधी को पता है कि शस्त्र से द्वारा जो प्राप्त की हुई स्वतंत्रता है वो हो सकता है स्थायी ना हो, अहिंसा के माध्यम से। अहिंसा वाला जो तत्व है, कुछ हमारे जो प्रोफेसर थे, कोई एकेडमिक थे, उन्होंने निंदा भी की अहिंसा को लेकर के। अभी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वेबिनार में हम थे और प्रहलाद सिंह पटेल जो कि मंत्री हैं कल्चर टूरिज्म के, वो साथ साथ थे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चे ने पूछा यदि गांधी नहीं होते तो क्या होता। उन्होंने कहा कि गांधी यदि नहीं होते तो शस्त्र और हिंसा के द्वारा जिन देशों ने आजादी प्राप्त की वैसे ही स्थिति भारतवर्ष की होती। मुझे लगता है इससे अच्छा उत्तर कोई दे नहीं सकता, ऐसा उत्तर भी केवल प्रहलाद सिंह पटेल ही दे सकते हैं। मैं उनको उद्धृत कर रहा हूं। तो अहिंसा के माध्यम से उन्होंने जन समुदाय को इकट्ठा किया। ये आध्यात्मिक शक्ति ही है उनके बीच में, जो कि जहां पर भी खड़े होते हैं वहीं पर ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सबके बीच में जाकर के बात करते हैं। यहां मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दो चीजें कोट करना चाहूंगा। एक वो 7 जून 1893 की घटना है, जबकि गांधी जी
ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं उन्हें यात्रा करने नहीं दी जाती है। उनको जो है उतार के फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है वो इसमें यात्रा नहीं कर सकते। और दूसरी घटना शायद अप्रैल 1915 की है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि नोट मैंने नहीं किया है। जब चंपारण में मोतिहारी में ये जाते हैं, नील के जो मजदूर हैं उनके विरुद्ध आंदोलन करने की, सबसे पहला सत्याग्रह का आंदोलन ये करना चाहते हैं, उसमें महात्मा गांधी ट्रेन से उतरना चाहते हैं, इनको उतरने नहीं देते। दो घटनाएं एक साथ। एक बार 7 जून 1893 को यात्रा करना चाहते हैं, उनको यात्रा करने नहीं दी जाती है, और चंपारण में जो है वो उतरना चाहते हैं, वो उतरने नहीं दिया जाता है। अभी आप मोतिहारी जाएंगे तो एक ट्रेन का डब्बा खड़ा है, उसमें गांधी का पुतला उतरते हुए वहीं पर रोक लिया जाता है। लेकिन गांधी उतरते हैं, गांधी आंदोलन करते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं। तो गांधी का जो परिप्रेक्ष्य है, जैसे मैंने बताया, सत्य पर आधारित है। उनका परिप्रेक्ष्य अहिंसा पर आधारित है और उसको अपने जीवन में उतारने पर आधारित है। लोगों को साथ साथ कैसे लेकर के चला जाए, साथ ले चलने के लिए एक कोई अनुशासनबद्ध कोई तरीका हो सकता है, उसके आधार बनाते हैं। कोई कानून बन सकता है, हम अपने प्रतिनिधि बना देते, उनके आधार पर कर सकते हैं। गांधी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। गांधी जो है स्वयं आगे आकर के लीड करते हैं और सबको एक साथ लेकर के चलने वाले। गांधी जो है दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या बना करके काम करते हैं। गांधी जब देखते हैं नदी के किनारे एक वृद्धा स्नान कर रही है, उसके पास में धोती इतनी नहीं है कि वो समझे पूरे अपने अंगों को ढक ले। गांधी शपथ लेते हैं, आज से मैं पूरी धोती नहीं पहनूंगा। पूरे जीवन पर्यंत समझिए आधी धोती में ही वो काट देते हैं। यह है गांधी का परिप्रेक्ष्य। गांधी का परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जब बात आती है देश को किस प्रकार से स्वतंत्र किया जाए, उसका एक यंत्र उन्होंने बताया। देश का विकास किस प्रकार से हो, उन्हें स्वदेशी के अतिरिक्त कोई दूसरा विकास का मार्ग नहीं हो सकता है। भारतवर्ष को 1947 से लेकर 2020 तक बीच में कई बार स्वदेशी के नारे लगे, 90-91 में नारे लगाए गए, लेकिन स्वदेशी को एक यंत्र के रूप में, विकास के अंदर मॉडल के रूप में लाने में 2020 तक की यात्रा पूरी करनी पड़ी। स्वदेशी, गांधी का स्वदेशी अपनी राष्ट्रभक्ति से उपजी हुई व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जब गांधी कहते हैं कि भारतवर्ष जो है 7 लाख रिपब्लिक विलेजेस, सॉवरेन विलेजेस का देश है, तात्पर्य है कि गांव की अपनी व्यवस्था है, गांव की अपनी कृषि है, गांव अपनी खितानी है, गांव के अपने स्किल पर्सन्स भी हैं, गांव में गाय है, पशुधन भी है, गांव में वृक्षों से जुड़ा हुआ वन संपदा भी है। इन सारी संपदाओं को पूल बना करके, यदि अपनी स्किल के साथ में जोड़ करके हम प्रत्येक गांव को विकसित करके बनाएंगे और सारे राष्ट्र के जितने गांव सब विकसित हो जाएंगे, उससे राष्ट्र के विकास की नींव बनना चाहिए। गांधी ने हिंद स्वराज में सारी भूमिकाएं, पूरी विकास की जितने नियम हो सकते हैं, जितनी प्रणालियां हो सकती हैं, वो सब विकसित की। गांधी का जो प्रजातंत्र है, वो गांधी का प्रजातंत्र भी गांव से उपजा हुआ प्रजातंत्र है। जैसे प्रेमचंद ने जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी में स्पष्ट तौर पर लिखा कि पंच किस प्रकार से परमेश्वर हुआ करता है। गांधी प्रबंधन के बड़े दक्ष व्यक्ति हैं। समय प्रबंधन कोई सीखना चाहे तो गांधी से सीखना चाहिए। मिनट टू मिनट कितनी प्राथमिकता देनी है, कितनी प्राथमिकता नहीं देनी है। बात हो रही है, बहुत लंबी चौड़ी बात हो रही है, सब लोग बैठे हैं उनके पास में, और गांधी उठ खड़े होते हैं। बोले कहाँ चले बापू? बोले मुझे बकरी को चारा देना है। गांधी उठ के चले। प्रबंधन समय उनका हो रहा है। समय के प्रबंधन के बारे में, संसाधनों के प्रबंधन के बारे में, व्यक्तियों के नियोजन, व्यक्तियों के प्रबंधन के बारे में आज के जितने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, वो सबको जो है गांधी के बारे में सोचना चाहिए। गांधी जब स्वदेशी के बारे में बात करते हैं तो स्वदेशी में कोई उनका पूर्वाग्रह नहीं है।
गांधी पूरे स्वदेशी हैं, स्वदेशी उनके अंदर आत्मा है, स्वदेशी जो है उनकी जीवन शैली है, सब कुछ स्वदेशी है उनका। लेकिन यदि उनको घड़ी देखना है, घड़ी की आवश्यकता है, तो मेड इन इंग्लैंड घड़ी लेने में उनको आपत्ति नहीं है। यदि उनको लिखना है तो पेन मेड इन इंग्लैंड पेन यूज करने में उनको आपत्ति नहीं है। यदि आई साइट वीक है, चश्मा यदि उनको चाहिए तो चश्मा मेड इन इंग्लैंड पहनने में उनको दिक्कत नहीं है। ट्रेन ब्रिटिश का चलाई है, उसमें उनकी यात्रा करना है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। छापा खाने में, जो कुछ स्याही यूज करने में, ये सारी उनको आपत्तियां किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि वो आवश्यक बन जाते हैं। इसी आवश्यकता पर आधारित यदि मान लीजिए हमको इंपोर्ट करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अनावश्यक ढंग से यदि आप वस्तुओं को आयात करते हैं तो उसमें आपत्ति जरूर हो जाएगी। मानव श्रम के बड़े पक्षधर हैं, लेकिन शिमला में जाते हैं तो बग्घी में बैठ करके चलने में भी उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति एक गांव के छोटे छोटे व्यक्ति के बीच में रहने में भी आपत्ति नहीं है, और बजाज के बिरला के जाने में रहने में भी उनको आपत्ति नहीं है। ये गांधी की जो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है, जिसमें सबको समान भाव से देखने वाला भाव आता है, वो इसके अंतर्गत सामने हमको दिखाई पड़ जाता है। गांधी से जुड़े हुए कई प्रसंग हैं, गांधी से जुड़ी हुई कई बातें आप सभी लोग जानते हैं। गांधी चाहते हैं बिना पर्पस के कुछ काम नहीं होता, और ये आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से उपजा हुआ ही भाव है। भारतवर्ष ने जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय दिए हैं, ये पर्पस ऑफ लाइफ है। इसी पर्पस ऑफ लाइफ को गांधी ने ट्रांसलेट किया है अपने दर्शन में। सबसे कहते हैं पहली चीज सीख लो कि पर्पस होना चाहिए, पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए। जो भी काम करो, जो चीज जियो, जिस समय व्यतीत करो, उसका कोई न कोई प्रयोजन, कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। और ये उद्देश्य, जीवन को उद्देश्य देने वाला देश केवल भारतवर्ष है, और कहीं पर भी जीवन के उद्देश्य स्पष्ट नहीं किए गए हैं। यद्यपि गांधी ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात नहीं की, लेकिन पर्पस की बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। गांधी जी सत्य की जब बात करते हैं, सत्य बोलना चाहिए, सबसे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता और सत्यवादिता में थोड़ा सा अंतर होता है। नागेश्वर राव जी जानते हैं, हमारा एक बार वाइस चांसलर अरुण गुल्टू साहब आ गए, डीजीपी थे, बड़े साहब अधिकारी थे पुलिस के। जब जाए तो कहेंगे यस वाजपेयी, वी शुड बी ट्रांसपेरेंट इन आवर इसी अप्रोच। मैंने कहा सर, वी शुड बी ट्रांसपेरेंट मोर देन आई थिंक वी शुड बी ट्रुथफुल इन आवर अप्रोच। व्हाट डज इट मीन? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रुथफुलनेस एंड ट्रांसपेरेंसी? हमने यस, कागज पर ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। सत्यम कंप्यूटर के देते हैं, चार्टर्ड अकाउंट से हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर दी थी। सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ था उसमें सब ट्रांसपेरेंसी होती है उस कागज पर, अंदर अंदर समझिए सत्यवादिता नहीं होती। गांधी की आध्यात्मिकता कहती थी, गांधी का परिप्रेक्ष्य कहता था कि खुद से सच बोलो। आदमी संसार से झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से जो है झूठ नहीं बोल सकता है। जब खुद से सच बोलने लगेगा तब लगेगा गांधी के मार्ग पर जो हम चल रहे हैं। इसी प्रकार से गांधी का एक और कोटेबल कोट है जो उनके सिद्धांतों में है, सोच बड़ी रखना चाहिए, सोच बड़ी रखना, लक्ष्य बड़े रखना चाहिए, लक्ष्य बड़े रखना चाहिए। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट होना भी व्यक्ति को आना चाहिए। सोच बड़ी रखो, बल्कि छोटी चीजों से भी संतुष्ट रहने की आदत व्यक्ति के पास में होनी चाहिए। होता यह है कि हम बड़े लक्ष्य तो निर्धारित कर देते हैं, बड़ी चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं, और छोटी छोटी चीजों को ध्यान ही नहीं देते हैं। अब इसमें मान लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पास में लक्ष्य में है, तो छोटे गांव के किसानों को हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। यदि लक्ष्य हमारा राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाना है, बड़ी स्वतंत्र बड़ा हमारे पास में लक्ष्य है, तो हम चंपारण का सत्याग्रह तो हम नहीं भूल सकते, हम डांडी मार्च करना तो नहीं भूल सकते। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो भी हमारे पास में आनी चाहिए। और इसके पीछे वैज्ञानिक नियम यह है, आपको हिमाचल की भी चढ़ाई करनी, एवरेस्ट पर भी चढ़ाई करनी है। एवरेस्ट की ऊंचाइयां भी एक एक कदम करके ही तय की जाती हैं। कोई चॉपर से चला जाए तो उसको माउंटेनियर नहीं कहते हैं,
माउंटेनियर तो वही होगा जो एक एक कदम करके चलता है, कदम एक ही छोटा छोटा होता है, चाहे बड़ी मंजिलें प्राप्त करना हो, ऊंचाइयां प्राप्त, शिखरों का स्पर्श करना हो, वो भाव गांधी के अंतर्गत आ जाता है। गांधी के बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे विशेष बात जो गांधी को गांधी बनाती है वह उनकी न्यासधारिता का सिद्धांत, जिसको मैं सबसे अधिक महत्व देता हूं। ये न्यासधारिता, ट्रस्टीशिप जिसको कहा गया है, इस ट्रस्टीशिप ने पूरा उनका इकोनॉमिक्स, पूरा उनका एनवायरनमेंट, पूरा उनका अपरिग्रह जैन का, सारी चीजें इसके अंदर सम्मिलित हो जाती हैं। और इसका भी परिप्रेक्ष्य आध्यात्मिक ही है। जब ईशावास्योपनिषद में कहा गया, ईशावास में गुंग सर्वमत किंचित जगत्यांग जगत तेने तक्तेन भुंजी था माग्रदा कससिद्धरम। ये जो कुछ भी है सब ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के ही अधिकारक क्षेत्र में है। इसमें आपको जितना आवश्यक हो उतना उपभोग करो। तक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ में उपभोग करो। उपभोग करने की मनाही नहीं है, लेकिन छोड़ करके उपभोग करो, त्याग करके उपभोग करो। लालच के साथ में, हड़प करके, प्राप्ति के भाव से उपभोग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। माँ गृधा कस्य से, किसी से आपको न तो लालच होना चाहिए, न वैर होना चाहिए, न किसी से ईर्ष्या होनी चाहिए। ये भाव जो ट्रस्टीशिप का भाव है, और इस ट्रस्टीशिप को लेकर के गांधी ने पूरा एक मार्ग बताया। गांधी का जो परिप्रेक्ष्य, गांधी का परिप्रेक्ष्य सही ढंग से समझा ही नहीं गया भारतवर्ष में। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जो गांधीवादी जो कहते भी हैं गांधीवादी हैं, उन्होंने गांधी को ठीक ढंग से समझ नहीं पाया। और मैं भी, मेरे अंदर भी अहंकार नहीं है, मैंने गांधी को समझा। एक भाव ये था, जब कैपिटलिज्म विश्व भर में आया, 18वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, मध्य से स्थापित हो गया, वो क्या करते हैं, निजी स्वामित्व को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। जितने संसाधन हैं, जो व्यवस्था है, उसमें निजी स्वामित्व होना चाहिए, निजी व्यक्ति होना चाहिए। प्रारंभ होता है परफेक्ट कंपटीशन से, बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारी फर्म का आना जाना सब चलेगा, और अंत होता है जाकर एकाधिकार में। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा दुर्गुण ही है ये, अंत में जाकर कि या तो एकाधिकार में या एक क्रेताधिकार में, मोनोपोली, मोनोप्सोनी में ही समझिए कन्वर्ट होता जाकर। इसका नियम ही कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, और इसके प्रतिकूल, इसके सम्मुख जो दूसरी व्यवस्था खड़ी की गई वो कम्युनिज्म की व्यवस्था थी। उसमें इसको हटाकर राज्य के हस्तक्षेप की बातचीत थी। राज्य का स्वामित्व होगा, राज्य के पास ही संसाधन होंगे, राज्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी क्रियाओं को लेकर के राज्य ही करेगा। एक तरफ व्यक्ति, एक तरफ राज्य है, दोनों में ही संसाधनों के स्वामित्व की बात होती। एक व्यक्ति से शुरू होता है, एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, और एक को राज्य को जन्म से ही एकाधिकार प्राप्त होता है, उसमें भी वितरण नहीं हो पाता सी ढंग से। वहां भी जिनका पॉलिट ब्यूरो है, वहां भी स्टेट है, जो राज्य है, वही हर एक चीज अपने पास में रखता है, सबको नियंता समझता है। तो दोनों के बीच में जो एक भाव आया, गांधी ने जो स्थापित किया, ट्रस्टीशिप का भाव दिया कि ना आपका स्वामित्व, ना कोई व्यक्ति का स्वामित्व है, न राज्य का स्वामित्व है। संसाधनों में यदि कोई स्वामित्व है तो ईश्वर का स्वामित्व है, प्रकृति का स्वामित्व हो, ये ज्यादा वैज्ञानिक है। कोई भी कहे, चाहे कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है, राज्य कहे कि उसने एक टुकड़ा कोई भूमि बना सकता है, या कोई एक बूंद जल बना सकता है, या एक टुकड़ा कोई हवा का बना सकता है। जितने पंचभूत हैं, पंचभूतों निर्माण करने किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है। न कोई वन बना सकता है, न कोई समुद्र बना सकता है, न कोई नदियां बना सकता है, न कोई आसमान बना सकता है, न कोई ओजोन लेयर बना सकता है, कोई बना ही नहीं सकता। न कोई सूर्य बना सकता है, न कोई चंद्रमा बना सकता है, किसी में ताकत नहीं। ये शक्ति यदि किसी के पास में ईश्वर, तो गांधी जो अधिक वैज्ञानिक हैं, अधिक विकासवादी हैं, इन दोनों ही दृष्टियों से, पूंजीवादी दृष्टियों से और साम्यवादी दृष्टियों से, तब कहते हैं ईश्वर का सामित्व जो है सब पर है। हाँ, हमको आवश्यकता है, हम आवश्यकता भर उससे ग्रहण कर लेंगे, आवश्यकता भर ग्रहण कर लेंगे। ये भाव पूंजीवाद में नहीं है। पूंजीवाद जो है वो बात करता है वांटलेसनेस की, बात करता है अनलिमिटेड वांट्स की बात करता है। रॉबिन्स को कोट कर रहा हूँ, आवश्यकताएं अनंत की बात करता है। रॉबिन से लेकर के और रिचर्ड टैलर तक सब इसी की बात करते हैं, किसी प्रकार से आवश्यकताओं को बढ़ाया जाए। पूरा विश्व इसी पर ही बढ़ा हुआ है। हम किस प्रकार उपभोग को बढ़ा करके आवश्यकताओं को बढ़ाएं, उपभोग को बढ़ाएं, डिमांड को बढ़ाएं, और डिमांड लेट समझिए ग्रोथ मॉडल हमने दिया हुआ है अभी तक। और वही बात समझिए साम्यवाद में भी आई
साम्यवाद तो रूस जैसे ग्रुप में खत्म हो गया, लेकिन चीन जो साम्यवादी है वो भी उसी मार्ग पर चल रहा है कि उन दोनों में बेसिक डिफरेंस कुछ है ही नहीं। दोनों ही पदार्थ पर आधारित हैं, दोनों ही उपभोग पर आधारित हैं, दोनों ही वस्तुओं पर आधारित हैं, दोनों ही भौतिकवाद पर आधारित हैं। इससे इतर कोई सोच ही नहीं सकता, दोनों की सभ्यताएं एक ही जैसी हैं। गांधी जब कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त सारे हमारे पास में संपत्ति है, हम आवश्यकता अनुसार इसका हम उपभोग करें, मॉडल इसी से ही बनता है। समझिए, हर एक व्यक्ति, गांधी खुद कहते हैं, हमें जो है प्रकृति से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। लालच को पूरा करने एक व्यक्ति के पास में भी जो संसाधन उपलब्ध नहीं है, और आज का मॉडल जो पूरा लालच के द्वारा चलता है। यदि हमने प्रकृति से जितना आवश्यक उतना हमने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के उपरांत जो शेष रहता है प्रकृति के रिसाइकलिंग करने के लिए या जिनको जरूरत है वहां पहुंचाने के लिए, तो न तो समझिए किसी प्रकार के वितरण की असमानता होगी, न समझ सस्टेनेबिलिटी की बात होगी। रश्मि जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, हो सकता है जो भाव मैं कह रहा हूं उसी से ही जुड़ा हुआ हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उन्होंने ही की जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चिंता कही नहीं, जिन्होंने अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल दिया ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करता है। गांधी ने वास्तव में संपुष्ट विकास का जो पर्यावरण के साथ में जुड़ाव है उसकी बात गांधी ने की। इसलिए गांधी वन की बात करते हैं, गांधी गांव की बात करते हैं, गांधी गाय की बात करते हैं, गांधी जैविक खेती की बात करते हैं, गांधी शाकाहार की बात करते हैं। गांधी के जो सप्त सिद्धांत है उसमें शाकाहार बहुत बड़ा सिद्धांत है। उनका सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, शाकाहार है, आस्तेय है, जिसको चोरी न करने वाला भाव है, और ट्रस्टीशिप वाला भी भाव उसके अंदर है। 7 सिद्धांतों में शाकाहार को महत्व देते हैं। वो कहते हैं मांसाहार से तो कष्ट होता है, वो कैसे आप करेंगे, और शाकाहार के भी उनके अपने प्रयोग हैं, ब्रह्मचर्य के उनके अपने प्रयोग हैं। मैं जो ट्रस्टीशिप की बात करता था, खाली पर्यावरण से सीमित नहीं है, उद्योगों को विकसित करना चाहिए, उद्योग विकसित होना चाहिए। उद्योग यदि विकसित नहीं होंगे तो कैसे बात चल पाएगी। लेकिन उद्योग में एक आवश्यकता से अधिक यदि मान ली उद्योगपति अपने पास ही रख लेता है तब वो पूंजीपति बन जाएगा, और जब मान लीजिए कि जितनी आवश्यकता से रख लेता है बाकी बांटता है, जैसा उन्होंने बिरला से कहा, जैसे जमनालाल बजाज से कहा। जमनालाल बजाज जो थे उनके कोषाध्यक्ष थे। गांधी जी के जो परम प्रिय व्यक्तियों में से थे विनोबा थे। विनोबा ने गांधी के जितने आध्यात्मिक प्रयोग थे विनोबा ने जीवन उतारा, और गांधी कभी कभी ये कहते हैं विनोबा तो हमसे ज्यादा भी आध्यात्मिक है, हमसे ज्यादा आध्यात्मिक। ऐसे मौन धारण किया तो मौनी धारण के, व्रत करते हैं व्रती धारण करते चला रहे हैं। और गांधी के जो समाजवादी विचार थे वो उन्होंने सर्वोदय, जो दादा धर्माधिकारी थे, दादा धर्माधिकारी जो थे वो गांधी के समाजवादी विचारों को लेकर चलने वाले थे, और गांधी के जो राजनीतिक विचारी थे उसको नेहरू आगे बढ़ाने वाले थे। तो इस प्रकार से, और जो शिक्षा संबंधी थे वो नरेंद्र देव कृपलानी जैसे लोग बढ़ाने वाले थे। तो गांधी के पास में जो लोग थे वो जानते थे चीजों को। तो जब जमनालाल बजाज या बिरला जो उनको ट्रेनिंग दी, वो आप पाएंगे आज भी उनके उद्योग धंधों में वो चीज नहीं है जो दूसरे नए नए जो उद्योगपति बन गए हैं, जिस प्रकार से उनका व्यवहार है और उनके व्यवहार में आपको अंतर पता चल जाएगा। वो ट्रस्टीशिप की बहुत सीमा तक अभी पालन करते हैं, और इसी ट्रस्टीशिप का एक छोटा सा स्वरूप हमको दिखाई पड़ता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, CSR जिसको कहा गया है, जिनका 2% ऑफ एनुअल जो रिसीट्स होती हैं उनको आपको शेयर करना है। छोटा सा स्वरूप दिखाई पड़ता है, लेकिन CSR क्या बंधनकारी है, और वो गांधी उसको जो है आध्यात्मिक रूप मानते हैं। इसी ट्रस्टीशिप का जो है एक व्यवहार आता है जब हम उपभोग को कम करके बचत बढ़ाएंगे। जब बचत होगी तो बचत से कैपिटल फॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। बचत अभी कैपिटल फॉर्मेशन कम है, 12-30% के कुछ आसपास है, चाइना की 40% है। हमारी पूरी प्रकृति जो है वो बचत पर आधारित, उपभोग पर आधारित प्रकृति है ही नहीं हमारी। हमारी जो संस्कृति है वो उपभोग पर आधारित न होकर के बचत पर आधारित है। तो बचत को मॉडल बना करके, बचत से पूंजी निर्माण करके एक आत्मनिर्भरता का मॉडल अगर हम ले जाते हैं, तो उस आत्मनिर्भरता के आधार पर जब वो पूंजी निर्मित होगी उसका विनियोग करेंगे, और विनियोग करने के भी चैनल्स कहाँ जाएंगे। रश्मि डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, गांधी का जो परिप्रेक्ष्य है वो डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। इसमें इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, वो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन बात करते हैं। हर एक का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
अभी जिस भाव से हम चल रहे हैं वो केंद्रीकरण की ओर चलता चला रहा है। मैंने कुछ आंकड़े देखे थे अभी कुछ दिनों पहले, भारतवर्ष में ही जो 13 से 16-17 का जो पीरियड है उसमें जो एडिशनल इनकम जनरेट होती है उस 40 से 50% जो है 1% जो रिचेस्ट पॉपुलेशन उसकी तरफ जाता है। और जो लेटेस्ट डेटा आता है बहुत ही ज्यादा समझिए चौंकाने वाला है। आप 17 से लेके 20 तक का जो है जितना एडिशनल जीडीपी जनरेट हो रही है उसका 86% जा रहा है 1% रिचेस्ट पॉपुलेशन पास में। मतलब जो 14% ही जो है वो जा रहा है, साइफन होके जा रहा है आपकी 99% जो पॉपुलेशन बड़ी पॉपुलेशन के पास में, और 1% पास में जो जितना भी हम विकास कर रहे हैं उसका 86% जा रहा है। ये गांधी का मॉडल नहीं है। गांधी का मॉडल तब हो पाएगा जब इसको डिसेंट्रलाइज मैनर में, डिकॉन्सेंट्रेशन मॉडल में, डेमोक्रेटिक मैनर में डेलीगेट करते हुए पावर्स हम करेंगे, तब जाकर के गांधी हमारे सामने प्रकट हो पाएंगे। गांधी श्रीमद् भगवत गीता के बड़े अनुयायी हैं, उसको जीवन में उतारते हैं। गीता माँ कह के उन्होंने लिखा भी है कि गीता माँ पूरी पुस्तक है। गीता के जो सिद्धांत हैं और वो ट्रस्टीशिप वाला हो या निष्काम कर्म वाला हो या स्थिति प्रज्ञ वाला भाव हो, इस सारे के सारे भाव जो है गांधी ने अपने जीवन में उतारे हैं और उतार करके हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। गांधी को सबके साथ में चलने की आदत है। गांधी का जो भाव है एक सनातनी हिंदू का है। मैं सनातन शब्द का उपयोग इसलिए करना चाहता हूं, हर एक सनातनी हिंदू होगा ही, लेकिन प्रत्येक हिंदू सनातनी भी होगा, इसमें प्रश्न चिन्ह है। आप लोग कहेंगे मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं, अधिकांश सनातन और हिंदू दोनों साथ साथ शब्द लेके चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म है ही नहीं, हमारे सनातन धर्म है। सनातन से तात्पर्य होता है जो प्राचीन से प्राचीन हो और नवीन से नवीन हो, जिसमें सबको समावेश करने के भाव हो। ये हिंदुत्व की पहली पहचान है। लेकिन कुछ यदि हिंदुत्व में कट्टरवादिता बह जाती है, उसको सनातनी स्वीकार नहीं करता है। तो गांधी जो है वो सनातनी हिंदू हैं, इस बात को स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं। इसलिए जब ईसाइयों के बीच में जाते हैं, उन्होंने बाइबल पढ़ी है, बाइबल का प्रेम उनके पास में आता है, बाइबल की करुणा, ईसा मसीह करुणा उनके अंदर विद्यमान रहती है। उस करुणा और प्रेम को लेकर के ईसाइयों के पास में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी स्वीकृति होती है। जहां तक नियम पालन की बात है, क्योंकि भारतवर्ष में उस समय भी इस्लाम एक बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन उनके मन में रंच मात्र भी न तो जिन्ना के प्रति द्वेष है, न समझे ऐसे व्यक्तियों के प्रति द्वेष है जो कि समझिए कट्टरपंथिता लेके चले। अपितु गांधी की जो आलोचनाओं का स्वर बहुत प्रबल होता है विरोधियों का, वो इसलिए होता है वो अधिक कुछ इस्लाम के पक्षधर हो जाते हैं और हिंदुओं का पक्ष सही ढंग से नहीं ले पाते हैं। यहाँ तक कि जब पार्टीशन हुआ और कलकत्ता में जब गए वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए, तो हिंदू परिवार नहीं रुके थे, एक मुस्लिम परिवार में रुके थे जाकर के। और जब दंगे नहीं रुके, कम तो हुए, फिर बढ़ने लगे, तो इन्होंने आमरण अनशन फिर बैठ गए। तो एक घटना उसी समय की है, इनसे बहुत सारी कुछ घटनाएं हैं। एक घटना यह है कि एक व्यक्ति उनके पास में आया जब आमरण अनशन बैठे हुए थे, और उस व्यक्ति ने कहा ले रोटी खा ले नहीं तो मर जाएगा। ये शब्दावली को उपयोग जो लिखा हुआ है। बोले मैं क्यों खा लूं? बोले खा लो नहीं, मैं मरने वाला, मुझे नरक मिलेगा। उन्हें कैसे नरक मिलेगा? बोले कि मुझसे 8 साल के एक मुस्लिम बच्चे की मैंने हत्या कर दी। बोले तुमने हत्या क्यों कर दी 8 साल के मुस्लिम बच्चे? क्योंकि मेरे 8 साल के बच्चे किसी मुसलमान ने हत्या कर दी थी, तो मैं तुम्हें रोटी देकर के मैं खुद मरने जा रहा हूं, नरक चला जाऊंगा। तो लोग तुम रुको, प्रायश्चित करो। उन्हें प्रायश्चित क्या कर सकते हो? उन्हें प्रायश्चित ऐसा करो, एक लड़के को लो, छोटे से लड़के को लो जिसके कि माँ बाप समझिए कि इसमें जिनकी मृत्यु हो गई हो, उसको पालो और जीवन पर्यंत उसकी सेवा करो। और जब जाने लगे तो शर्त ये वो लड़का मुसलमान का हो, वो लड़का मुसलमान हो। ये गांधी ने उससे कहा। ये कोटेबल कोट्स आप गांधी की पढ़ेंगे उससे मिल जाएगा। गांधी जाते हैं उड़ीसा में एक बार, अपना चरखा वाला जो यंत्र है उसके चरखा के धन इकट्ठा करने, चरखा अभियान चले। ये सारे उनके छोटे छोटे अभियान है जो कि जनता को जोड़ने वाले अभियान है। जाते हैं,
इकट्ठा करते हैं पैसा लोगों से। तो एक वृद्ध महिला आती है सफेद साड़ी में, सफेद बाल उसके हो गए हैं, बोले मुझे गांधी से मिलना है। तो बोले बोलिए मैं गांधी हूँ। मिल गया जाकर उसके पास में, उसने इनके पैर छुए और अपने धोती में से तांबे का 1 रुपए का सिक्का जो चलता था वो गांधी को दिया। गांधी ने उसको बड़े प्रेम से लिया, अपने माथे पे लगाया, अपनी जेब में रख लिया। जमनालाल बजाज ने कहा वो मुझे पैसा दिए, अपने अकाउंट रखना। बोले ये पैसा तुमको नहीं दूंगा। बोले क्यों? आप तो सारे चेक्स हमको दे देते हैं, सैकड़ों रुपए हमको दे देते हैं। बोले कि ये जो रुपया है ये विशेष रुपया है, ये सामान्य रुपया नहीं है। ये उसने जीवन भर की पूरी गाढ़ी कमाई जो उसने अपने पास में रखी, ये मेरे लिए पूजा की वस्तु है, ये व्यय की वस्तु नहीं है, ये कोष की वस्तु नहीं है, मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। ये है गांधी। गांधी का जीवन जो है वो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। गांधी ने एक राजनीति का अपना एक प्रादर्श दिया है हमारे बीच में, चाहे तो उसको अपनाएं। गांधी ने विकास का अपना एक मॉडल दिया है। गांधी ने कूटनीति का उदाहरण दिया है। उस समय की जब बात थी, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, आप पाएंगे हिटलर और मुसोलिनी दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। गांधी कहते हैं ब्रिटिश सरकार से कि आप उन दोनों को बुला करके बातचीत क्यों नहीं करते हैं, दोनों को बुला करके बातचीत करी, समझाने की कोशिश करते हैं। आज की स्थिति वैसी है। आज भी चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे पड़ोसी राष्ट्र जो हम पर हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कहीं बुला करके बातचीत की जाती है, गांधीवादी दृष्टि से बातचीत करें तो हो सकता है इसका जो हल निकालने की हमको सफलता मिल सकती है। तो गांधी आज भी हमारे बीच में उतने ही प्रासंगिक हो जाते हैं। गांधी के बारे में एक आरोप लगाया जाता है, गांधी जी विकासवादी नहीं है। गांधी का परिप्रेक्ष्य विकास के प्रति प्रतिकूल नहीं है। गांधी विकास चाहते हैं। गांधी जी विकासोन्मुखी उनकी दृष्टि है, लेकिन विकास किसके लिए, इस प्रश्न का भी उत्तर चाहते हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर चाहते हैं, विकास आखिर किस लिए? विकास कुछ एक व्यक्तियों के लिए, विकास कुछ एक क्रियाओं से मिला करके, जैसा अभी चलता चला जा रहा है, कुछ एक व्यक्तियों के लिए विकास हो रहा है। अब कुछ समझिए कि क्रियाओं से माध्यम से लेके विकास हो रहा है। गांधी चाहते नहीं। गांधी के पास में जब 1938 में पहली बार प्लानिंग की कुछ बातचीत हुई और नेहरू जी ने कहा कि बापू हमने एक प्लानिंग बनाई है, जरा इसको देखो। कितने साल की प्लानिंग? 1 साल की तो ही है। बोले मैं एक चीज बता दो, 1 साल बाद जो है वो एक आम आदमी की आमदनी जो है वो 1 आने से बढ़ेगी, 2 आने से बढ़ेगी, 3 आदमी से, ये बता दो। बोले ये तो नहीं बता सकते। ग्रोथ फॉर होम, you see the question, the Himalayan question, growth for whom must be answered before any planning as such. तो किस लिए ग्रोथ चाहते हैं? इन ग्रोथ का न्यायोचित वितरण होना चाहिए। ग्रोथ में इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ग्रोथ में इम्बैलेंसेस नहीं होने चाहिए। ग्रोथ में इनस्टेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। तब वो गांधी का मॉडल हमारे पास में आता है। गांधी से भी कहा था, गांधी जी आधुनिक तकनीक के जो है पक्षधर नहीं है। जो व्यक्ति उस समय घड़ी अपने पास में रखता हो, रेलगाड़ी पर चलता हो, चरखा के लिए कहता हो कि भाई हमें कोई ऐसा तकनीकी बता दे, जैसे अभी तो समझिए 1 ही पूनी वाला चरखा हमारे पास में है, 10 पूनी वाले चरखे हमारे पास में आ जाए, एक साथ चलने लगे तो उससे श्रम जो है बचत हो पाएगी। तो ऐसा व्यक्ति तकनीकी का विरोधी तो नहीं हो सकता, लेकिन वो तकनीकी जो है वो श्रम को प्रतिस्थापित करने वाली होगी, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। आधुनिक तकनीकी जो है श्रम को प्रतिस्थापित करने वाली, लेबर सब्स्टिट्यूटिंग टेक्नोलॉजी। अगर लेबर को ही आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, कैसे पॉवर्टी दूर होगी, कैसे इक्वलिटी कैसे आ पाएगी? वो श्रम के सहयोगी के रूप में तकनीकी के पक्षधर थे। वो तब भी सही था और आज भी सही हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तो गांधी का एक और चित्र आप देखें, वो एक टेलीस्कोप दूरबीन को देखते हुए, माइक्रोस्कोप को देखते हुए कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी तकनीकी जो है पानी दृष्टि थी। गांधी एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चीजों को उनका देखने का नजरिया है। वही गांधी का चश्मा है। गांधी का चश्मा, उनके शरीर के बहुत सारे समझी चीजें मिलते हैं, प्रोमिनेंट बहुत सारी चीजें हैं,
गांधी का डंडा भी है। हुआ क्या, जब महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में भी कुछ दिन काम करने का अवसर मुझे मिला है, तो एक दिन चिट्ठी आई हमारे पास में कि गांधी जी की प्रतिमा जो है तोड़ के कहीं पर गड़वा दी गई है। प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को किस्सा पता हुआ, मैं चार्ज में था, मुझे तकलीफ हुई, अंदर से ही तकलीफ हुई। हमने कहा पता लगाओ, और मेरा अपना स्टाइल था पता लगाने का, हमने पता लगवा लिया। हमने जेसीबी मशीन बुलवाई, उससे उनको उखड़वाया, तो सबसे पहले मशीन से उखड़ जाओ चश्मे निकला गांधी का, उसमें पूरा उसका वीडियो बना था। और हमारे डर के हमने वीडियो बनवाया था जिससे हमको आक्षेप लग जाए। आज तक में जो राजेश बादल है उन्होंने 1.5 दिन तक दिखाया था, और उसका परिणाम ये भी हुआ, कुशाभाऊ ठाकरे जी की अंत्येष्टि संस्कार में नरेंद्र भाई मोदी जी भी आए थे, हम भी वहां पहुंचे थे। इन्होंने दूर से मुझे देखा और बोले वाजपेयी जी नमस्कार। बोले मैं तो आप पहचान, तो आप मुझे कैसे पहचानते? बोले गांधी का पुतला जो आपने निकलवाया चित्रकूट में, उसे पूरा देश जो है आपको जो है जानने लगा है। ये उस समय की बात, शायद 2003 की बात हो गई है। तो वो चश्मा आता है, चश्मे को साफ करिए, वो गांधी की चश्मा ही नहीं, वो गांधी की दृष्टि है, वो गांधी का परिप्रेक्ष्य है। उस गांधी के परिप्रेक्ष्य से हमें मानवता दिखाई पड़ती, उस गांधी के परिप्रेक्ष्य से हमें गांधी का तलिस्मा दिखाई पड़ेगा, जिसमें कहते हैं यदि आपको निर्णय लेने में परेशानी हो रही हो, किसी भी नीति बनाते समय, कोई काम करने में, तो आप उस गरीब की आंख के आंसू को अपने ध्यान में रख करके देखिए, आपको निर्णय लेने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। गांधी का वो नजरिया, वो चश्मा, वो परिप्रेक्ष्य ही है जो गांधी को 7 पाप दिखाता है और कहता है इन पापों से बचिए। वो पाप क्या है? सिद्धांतों के बिना राजनीति, राजनीति बिना सिद्धांत के पाप होगी। और किस प्रकार की राजनीति हो रही है कि तो आज चल रही है, सबको पता है। पहला पाप। परिश्रम के बिना संपत्ति, संपत्ति अर्जित की लेकिन बिना परिश्रम उसमें किया, वो दूसरा पाप है। और अंतरात्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, चौथा पाप है। और नैतिकता के बिना वाणिज्य, पांचवा पाप है। और मानवता के बिना विज्ञान, और त्याग के बिना पूजा। यह है गांधी का परिप्रेक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, मुझे अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे गांधी से जोड़ने का, गांधी को सोचने समझने का एक अवसर प्रदान किया है। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। Thank you, sir. Such an elaborate, in-depth, and lively talk. It has mesmerized all of our audience, those who are present here. I constantly find 122 people present to listen to you, sir. And they incorporate the academic administrator, our teachers, our academics, our staff member, our students from various parts of the country. Thank you. So Thank you. mesmerizing. And I can only say any attempt to summarize your talk will be a futile exercise. And as a teacher, I don't like to indulge into that futile exercise to summarize your talk, sir. So at this stage, I can only invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao ji, to give his presidential address. Thank you, sir. आदरणीय वाजपेयी जी और आप सभी मित्र, हम लोग बहुत तन्मयता से आदरणीय वाजपेयी जी को सुन रहे थे और वो हृदय से अपनी बात को कह रहे थे। और किसी ने चैट में अपना कमेंट भी दिया है कि इतने भावुक हो गए थे, उनकी आंख से आंसू भी आ गए थे। और उस दृष्टांत को उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया, जो गरीबी, जो कपड़ों की कमी, तो किस रूप में हम लोग देखते थे। आज जब वाजपेयी जी को हम सुन रहे थे तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए
82 से 85 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं गांधी भवन का मानद निदेशक था। लगभग सारे शब्द जो उन्होंने प्रयोग किए उस समय सुनता भी था और उनका प्रयोग भी करता था, क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो परिकल्पना थी, जो हम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि गांधी का विचार या जो गांधी का जो दर्शन है वह केवल बड़े लोगों के बीच में ही सीमित न रह जाए, हमारी अगली पीढ़ी तक भी पहुंचे। और उसके लिए वहां पर विभिन्न कॉलेजेस में गांधी स्टडी सेंटर्स खुले हुए थे और उसमें व्याख्यान देने जाना पड़ता था। उसमें मैं भी जाता था, आदरणीय पीएन मिश्रा जी भी जाते थे, और भी बहुत से लोग हैं जिनको वाजपेयी जी जानते होंगे, इवन गिरीश त्रिपाठी जी भी में शामिल होते थे। और उसमें जब बच्चों से बात करनी होती थी गांधी के बारे में, तो हम लोग मुख्य रूप से गांधी के जीवन के उन प्रसंगों की चर्चा करते थे जो उन्होंने अपने आत्मकथा में उल्लेखित किए थे, और ऐसे प्रसंग जिस पर निश्चित रूप से कोई आदमी सामान्य रूप से बताता नहीं है, लेकिन उन सबको उन्होंने उल्लेख किया। यही उनके जीवन का जो पहला मूल्य था, सत्य, सत्य के प्रयोग, वो शायद वहां पर दृष्टिगत हुआ। आज तो वाजपेयी जी ने हम सबके दिल को छू लिया है, और हम तो सोच रहे थे कि ये सारी चीजें उन्होंने, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रस्टीशिप, गांधी का इकोनॉमिक्स, गांधी का सोशलिज्म, गांधी का पॉलिटिकल साइंस, सारी चीजों का इतना कम समय में इतने सरल शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया कि हम तो सोच रहे थे कि सुनते रहें। और अब वाजपेयी जी के एक ग्रुप में मैं जुड़ गया हूँ जहां वो अपनी बातें कहते रहते हैं अपने शिष्यों से। इनको पता रही है कि मैं कब से इनका शिष्य बन गया हूँ। और इनका स्नेह हमेशा बना रहा है। हम लोग बहुत पुराने मित्र भी हैं, और काफी पुराने हैं, हमारे ख्याल से 87 से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो और कभी भी उन संबंधों में कोई भी कमी नहीं आई, हमेशा संबंध बने रहे और अच्छे रहे। और शायद ये जो उनके मन में जो गांधी का जो मूल्य है वो जिस प्रकार से समाहित हो गए हैं, उसका ही परिणाम है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, उनको सुनने वाले जो बहुत से लोग थे वो सब आचार्य जी, गुरु जी, गुरुदेव इत्यादि संबोधित करते हैं, और उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप में है अधिकांश लोग मैं जानता हूँ, वो लोग भी उनको उसी सम्मान से देखते हैं। वक्ता तो बहुत अच्छे ही हैं, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन में भी बड़े पदों पर रहे। उन्होंने जब मध्य प्रदेश में थे तो इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित किया था। और शिमला में तो खैर व्यक्तिगत सम्मान जो लोगों का करते थे उसका मैं भी लाभ प्राप्त कर चुका हूं उनसे। गांधी से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि गांधी एक वाद नहीं है। गांधी पर प्रायः लोग गांधीवाद की बात करते हैं। उस समय बहुत चर्चा होती थी गांधीवाद, गांधीज्म ऑफ गांधी बार बार कहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे कहा गया नहीं, गांधीवाद नहीं है। इसीलिए गांधी जीवित हैं, हम सबके मन में जीवित हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके मन में भी वो जीवित रहे। इसीलिए अभी आदरणीय देवल जी ने जो बात कही कि हम लोग पेंटिंग कंपटीशन कराते हैं बच्चों से, और जो बच्चों से कराने से ये फायदा है कि हमारी जो अगली पीढ़ी आने वाली है वो गांधी को जाने, और गांधी के बारे में कम से कम लोगों को 2 बातें पता रहती है, सत्य और अहिंसा। और ये सत्य और अहिंसा वाली बात लगभग हर बच्चे को पता रहती है। उसको किस प्रकार से निरूपित करता है, किस प्रकार से अपने जीवन में उतारता है। हम लोग भले ही उनके बारे में पढ़े हों और देखे हों,
और जो सुने हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन की कोई ना कोई बात, उनके दर्शन कोई ना कोई बात हम लोग के ऊपर प्रभावित करती रहती है, और हम लोग के व्यवहार में, हम लोग के आचरण में कहीं ना कहीं वो दिखती भी रहती है। इसीलिए आज 150 वर्ष बाद भी हम लोग गांधी को उसी रूप में देख रहे हैं। शायद हम लोग किसी अन्य महापुरुष के बारे में, जीवित महापुरुष, ईश्वर को छोड़ दे, जीवित महापुरुष के बारे में 150 वर्ष बाद भी हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना बातचीत कर रहे हैं, और लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये एक साधारण सा व्यक्ति इतना बड़ा हो गया। इसीलिए अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी मानवीय मूल्यों की बात इसीलिए कही गई है। उनके 2 बड़े मानवीय मूल्य थे, सत्य और अहिंसा। उससे इतने बड़े व्यक्ति बन गए। हम लोग अपने जीवन में अगर एक वर्ष ही किसी एक मूल्य को भी अपना ले, एक ही छोटे से मूल्य को अपना ले, तो हम लोग भी देश का कल्याण कर सकते हैं, हम लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। शायद ये उनका जो जीवन दर्शन है वो हम लोग को इस प्रकार की राह दिखाता है, इस प्रकार से सोचने को मजबूर करता है। अपने कर्तव्य को किस प्रकार से पूरा करें, इस पर भी हम लोग बहुत सी बातें उनके जीवन से सीख सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जिनको सुने, आज बहुत सी चीजों को उन्होंने झकझोर दिया, ट्रस्टीशिप, या जो कपड़े वाली बात है, या डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, राजनीति दर्शन की बात है, अर्थशास्त्र की बात है, ग्रामों की बात है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात है। सारी बातें जो उनके हरिजन और हिंद स्वराज जो पत्रिकाएं थी उसमें प्रायः पूरा उनका वॉल्यूम उपस्थित था हम लोग के पास लाइब्रेरी में। उसको देखते रहते थे, बातचीत होती रहती थी। और ये जो दर्शन है बहुत बड़ी चीज है। हम इस बात से प्रभावित होकर के एक और उदाहरण आपको बताना चाहेंगे। हमारे ख्याल से 1984 की बात होगी, 84 या 85 की बात होगी। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी उस समय मोरारजी देसाई जी थे, और वो गांधी भवन में इलाहाबाद में गांधी के ही एक आयोजन में आए हुए थे, और बातचीत करने के बाद उनको स्टेशन जाना था। उसमें ट्रेन से ये लोग आते जाते थे। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा व्यक्ति, रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग देर हो गई, और उस समय गाड़ी 3:40 या 50 मिनट छूटती थी, दिल्ली एक्सप्रेस करके होती थी। उनको पहुंचने में 3:40 हो ही गए। तो लोगों ने कहा कि गाड़ी रुकवा देते हैं, और करना गाड़ी रुकवाई नहीं, वो दौड़ते हुए चढ़े, और उस समय उनकी उम्र बहुत थी। इस प्रकार का जो बहुत छोटी सी बात थी। आजकल एक छोटा सा वीआईपी रहता है और तुरंत गाड़ी रुकवाने की बात सोच लेता है। इतने बड़े व्यक्ति जो गांधी के एक प्रसंग में आए, और हमारे लिए पूरे राष्ट्र की व्यवस्था क्यों रुक जाए, ऐसी बात सोचा और उन्होंने लागू भी किया। है बहुत बड़ी चीज, और इन सबको हम लोगों ने अपनी आंख से देखा हुआ है, वाजपेयी जी ने देखा हुआ है। और ये हमारे वो सम्मानित सदस्य हैं जो देश का इस समय 150वां महात्मा गांधी का जो आयोजन हो रहा पूरे देश में, उसके सदस्य भी रहे हैं। हम लोग के लिए बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया, हम लोगों को अभिप्रेरित किया, और उनका स्नेह हम लोग पर बना रहे। देवल जी पिछले 1.5 महीने से ही इस कार्य को कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम गांधी का शुरू किया है। और पीजी पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, और उसमें माननीय जो शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने ही उस पाठ्यक्रम को शुरू करने का जो कार्यक्रम था उसको उन्होंने शुरू कराया अभी कोविड-19 के दौरान ही। और कोशिश कर रहे हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और प्रसार हो सके, और हम लोग इनके जो आदर्श हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसको हम लोग लागू कर सकें। एक और हम लोगों ने प्रयास किया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने डीओपीटी के साथ मिलकर के एक 2 क्रेडिट का कैप्सूल बनाया था, और वो कैप्सूल पाठ्यक्रम उनके आईएएस ऑफिसर के लिए, वो भी सरकार चाहती थी कि अपने आईएएस ऑफिसर्स को कि गांधी का मूल दर्शन, गांधी के जो बेसिक्स है उनको लोग समझें। तो उस पाठ्यक्रम को डीओपीटी ने लागू भी किया है,
और उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, जिसमें मटेरियल जो हम लोगों ने दिया है उसको पढ़ना है और 3 टेस्ट है पास करने हैं और उसमें सर्टिफिकेशंस भी दिए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने 30 जनवरी 2020 को उसका उद्घाटन हुआ था। माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में निश्चित रूप से जो कर सकता है कर रहा है। और हमारे यहाँ का जो गांधी वाले कार्यक्रम है बहुत पुराना कार्यक्रम है। यहाँ पर यूजी पीजी में है कार्यक्रम और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कार्यक्रम है। और शायद आपको मालूम होगा आरपी मिश्रा जी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति थे, उनका बड़ा यहाँ पर मार्गदर्शन रहा है, सहयोग रहा है। और मुझे भी जिस समय की बात कर रहे हैं उसमें उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्यरत था। तो गांधी है ही हैं और उनको हम लोग भूल नहीं सकते। हमारी नई पीढ़ी भी बिल्कुल नहीं भूलेगी और पूरा देश उनको नहीं भूलेगा। व्यक्ति नहीं, यहाँ पर उनका व्यक्तित्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनके जो मूल्य हैं जिनको उन्होंने जीवन में अपनाया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आदर सहित आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं नागेश्वर जी 1 मिनट लूंगा और ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है, गांधी से मेरा जुड़ाव इतना है कि जैसे अभी आपने बातचीत की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, गांधी क्या है एक बार इलाहाबाद जा रहे थे तो उनको बुला लिया। 1904 की घटना है। तो विजयरंगम हॉल है आपके यहाँ, विजयनगरम हॉल है, वहां उन्होंने भाषण दिया था। अब उसकी 2004 में प्रोफेसर आरपी मिश्रा, गिरीशन त्रिपाठी सब सोच रहे थे उसका सेंटेनरी ईयर बनाना है, किसको बुलाया जाए। तो मैं चित्रकूट में वाइस चांसलर था तो गिरीशन त्रिपाठी मेरा नाम दिया। तो उस लेक्चर का सेंटेनरी ईयर बनाने के लिए मुझे उसी हॉल में उसी समय भाषण देने का सौभाग्य मिला। ये प्रोफेसर आरपी मिश्रा, गिरीशन त्रिपाठी, आप सबकी कृपा ही है मेरे ऊपर, वो बुलाया। जब इनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही थी गांधी जी की, तब दर्जा 9 में पढ़ता था। तो अस्पृश्यता पर एक प्रतियोगिता हुई तो मुझे जो 5 रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला। जब 125वीं जयंती मनाई जा रही तो मध्य प्रदेश मनाई जा रही थी तो कनक तिवारी जी आपको पता था राज समन्वयक थे उसके पूरे, उसकी जो पूरी इकोनॉमिक्स वाली टीम में मैं था। जब 150वीं जयंती मनाई तो राष्ट्रीय समिति में आ रहा हूँ। तो जैसे गांधी का भाव बढ़ रहा है, मेरा भी भाव जो है वो गांधी से जुड़ करके बढ़ रहा है। और मैं देखा पंकज खरे भी अपने साथ जोड़े हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। फोटो आ रहा था। पंकज खरे जी ने क्या किया, पंकज खरे जी को हमने मीटिंग में बुला रखा था। अच्छा जी जी। उन्होंने कहा कि सब 12 बज रहे हैं। अभी क्या हो गया, कुछ नहीं बोले। फिर वो वाजपेयी जी आ रहे हैं शायद, लेकिन वो उठना चाह रहे थे, अपने उनको जाने दिया, लेकिन बड़े आपके लिए सुनने के लिए बड़े आतुर थे पंकज। अच्छा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सर मैं प्रणाम सर, मौजूद हूँ मैं सर, सुन रहा हूँ। ओके पंकज, थैंक यू पंकज सर, प्रणाम सर। Thank you, sir. Thank you. Now, I'm on behalf of this Gandhi and Peace Studies Center. I'm really I'm speechless for my vote of thanks in this. सत्यकाम जी नमस्कार। In this occasion, I'm extremely thankful to our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao ji, for his spirit behind organizing this talk and also spirit behind inviting Professor Vaspey ji. Even though I was knowing Professor Vaspey ji in my meeting in Bilaspur, he gave this, that convocation special speech and that time I was talking, sir, that you are speaking as if you are not speaking, somebody is making you to speak, and everybody was so much, involved with that whole speech. So that was the first name we discussed, and it was really so nice of Professor Nageshwar Rao ji. He proposed your name and you came over here. So first I'm thankful to our Vice Chancellor for being the spirit of organizing this talk, and thank you very much, sir. And I'm really thankful to Professor Vaspey ji in that way. Listening is one thing, understanding is another thing, then realization is another thing. What is taking us to the level of realization? It links to our own ontology of being and becoming how it is.
And the whole presentation, you gave a perspective of yours that begins with the truth, spirituality, universality, and a kind of realization of those things in various dimensions of his life. His freedom struggle, then his attitude to the capitalism, attitude to socialism, then his attitude to various life, attitude to westernization, and trustship, how everything is linked to the whole process of realization of the truth, universality, application, and at the same time integrating the humanity to a new level of realization. I'm thankful to you, sir, to take us to that level of realization. It is not only understanding, not only listening, a level of realization. And also you make a kind of a watertight compartment between the truth and sin. What are the sin? What are the things to be avoided? What are the things to be realized? I believe to take us to the level of realization, I'm extremely thankful to you. I believe this whole university is thankful to you to take us to that level. I'm thankful to all the participants. I'm thankful to our own colleagues, our teachers, academic staff members, students. I'm also thankful to all the participants, many of whom I do not know, I'm finding their name. They have come through your invitation. They're most welcome. I'm thankful to them. There have been so many brilliant comments in the chat box. That shows your appeal among your followers, your appeal among the students, your appeal among the teachers. That is really, I'm thankful to all of them. I'm thankful to our all pro-vice chancellor, Professor Das, Kirti Bhushan Das, Aarti Das, also Professor Satyakam. I'm thankful to all of my the directors, heads of the division, the unit states, and our regional centers especially. I mean, they have played a big role in to make it a success for the dissemination of this information among the students. That we find a good number of the students also present in today's presentation. I'm thankful to all of you. Sir, I'm thankful to our especially Mr. Rajesh, our public personal relation department. He has taken the whole thing to make it online, and it is webcasted in our Facebook Live. It is available there. And I'm thankful to the computer division to see to it that there is flawless kind of internet connectivity. There is no ups and downs. They ensured it. And I'm thankful to our staff member who helped it. So I want to share a piece of information as I was talking in the first instance. And with the encouragement of our Vice Chancellor, we have opened the gate for the involvement of IGNOU students to understand the philosophy of life of IGNOU. We have given one competition in the painting, our Bapu, our nation, and our idea. And we have found more than 80 IGNOU staff members. They have already registered to make the painting. Good. We have got, sir, more than 450 poetries written in Hindi and English by the IGNOU students and staff members. And those poetries are amazing. All of the statistics that is, I am finding, sir, more than 62% of the students belong to the age group of below 22 years. I mean, they are thinking how Gandhi can be realized in their own life. That is one. Then I am finding even the gender composition, more than 65% are from the female categories. The girls and women, they have participated. So I'm also having the statistics, how many from the rural, how many from the urban areas. I believe when the students are participating in this kind of a thing, which we are talking about, realization of Gandhi's thought in one's life, I believe our students are the big messengers today. We are the ambassadors of the Gandhian thought, and Gandhian philosophy. I believe your talks, sir, that will enhance, that will ground it, found it in our philosophy that our new generation is coming. They are owning Gandhi, our Bapu, our nation, our ideals. Thank you everybody for joining it, and thank you for making it. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you everybody. Thank you. सर नमस्कार. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ji. Okay, thank you, Debal ji. Thank you. Thank you, sir. Pram. Nagen sir. नमस्ते चतुर्वेदी जी नमस्कार. ओके, दास साहब नमस्कार. सर नमस्कार सर. नमस्ते. ओके, पंकज, थैंक यू. ओके, नागेंद्र जी नमस्कार. नागेंद्र हमारे इग्नू से जुड़े हैं जी. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से. लास्ट टाइम सर 2 अक्टूबर को हमारी मुलाकात हुई थी मूर्ति भवन में सर.
अच्छा अच्छा, बढ़िया, गुड 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 गुड।